ہم اپنی بات کو اب شروع کرتے ہیں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن کی, چھوٹی سی آیت ہے. مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ لوگ بھاگیں گے, آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے, بھاگنے کی بھی جلدی ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ کریں گی, حرکت ہوگی. بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت زبردست ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں تم غم نہ کرو, مسلمانوں تم مایوس مت ہو جاؤ, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی صاحب عزت رہو گے, تم ہی ترقی کرو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, پہلے مومن بن کر دکھاؤ. سمجھ گئے آپ؟ اللہ نے عزت مسلمانوں کو دینے کے لیے کہا ہے, اللہ نے ترقی مسلمانوں کو دینے کے لیے کہا ہے, اللہ نے سرداری مسلمانوں کو دینے کے لیے وعدہ کیا ہے, لیکن ایک شرط لگا دی, اگر تم مومن ہو کر دکھا دو تو, مومن بن جاؤ تو. آج ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں, آج ہمیں بلندی نہیں مل رہی ہے, آج ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے, ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں. شرط پوری کرو پہلے. اذا فات الشرط فات المشروط, یہ عربی کا ایک سیدھا سا اصول ہے. جب شرط ہی پوری نہ ہو تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. نماز کے لیے شرط ہے کیا؟ وضو. اگر آپ کا وضو ہوگا تو نماز ہوگی, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر وضو صحیح تو نماز صحیح, اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں. تو اللہ نے کہا نماز پڑھو, نماز کے لیے شرط کیا لگایا؟ وضو. تو ہم نماز پڑھیں اللہ اکبر, لیکن وضو نہیں ہے, نماز ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شرط کو پورا نہیں کیا. پہلے شرط پوری کرو, اللہ نماز قبول کرے گا. شرط ہے ہم تمہیں بلندی دیں گے, ہم تمہیں ترقی دیں گے, ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے, ہم تمہیں سرداری دیں گے, لیکن ہماری ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. ایمان, ہمارے اندر ایمان نہیں. ایمان بنیاد ہے, بنیاد ساری چیزوں کی, پورے ڈھانچے کی بنیاد ہے ایمان. اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ جو چیز اپنی بنیاد پہ مضبوط ہوتی ہے وہ اوپر تک مضبوط رہتی ہے. جس مکان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس کی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے. بنیاد کمزور ہوتی ہے تو عمارت بھی کمزور ہوتی ہے. دو مثالیں دینے جا رہا ہوں. پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. بیٹھ جائیے, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. جس چیز کی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی, بنیاد کمزور ہوگی عمارت کمزور ہوگی. ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہماری عبادتیں اتنی ہی زیادہ قبول ہوں گی. ہمارا ایمان جتنا کمزور ہوگا ہمارا اسلام بھی اتنا کمزور ہوگا, ہماری عمارت بھی اتنی کمزور ہوگی. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, اپنی بنیاد کو جب چھوڑ دو گے تو ترقی نہیں کرو گے. مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آم کا پیڑ ہے, اس پہ آم لگا ہوا ہے. مثال پر غور کیجئے گا. یہ آم کا پیڑ لگا ہے اور آم کے پیڑ پر آم لگا ہے. اچانک ہوا چلتی ہے, آم ٹوٹتا ہے اور گرتا ہے. ایک بات بتائیے آپ, جب آم ٹوٹ کر گرتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ وہ آم کا پھل جب پیڑ سے ٹوٹے گا گرے گا تو کہاں گرے گا؟ زمین پر. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آم جب اپنے درخت سے اور برانچ سے, شاخ سے, پتوں سے ٹوٹتا ہے تو زمین پر کیوں گرتا ہے؟ آسمان اس کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ یہ اس مثال پر غور کیجئے. کیا ہے اس کا جواب؟ مائک والے پیسہ نہیں ملے گا.
अगर दोबारा गया तो मैं समझूंगा मोदी ने भेजा तुझे, साजिश के तहत आया तू यहाँ। हमारे प्रोग्राम में साजिश नहीं। कभी कभी ऐसा होता है साजिश में लोग कुत्ते भेज देते हैं। यूपी में बहुत से ये तो नौटंकी कर रहा है यार। कर लो एक बार, सही कर लो। हो गया? हाँ? इनको कहो यार बैठे हैं यार। ये भैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ठीक है। हाँ, कभी इस मिसाल पे गौर किया? आम जब तक दरख्त से जुड़ा था, लटका था, मिठास बढ़ रही थी, अचानक हवा चली, टूटा, जमीन पे गिरा। आसमान ने अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा? इसकी वजह क्या है? चलिए, अभी ये लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, अब वो करने लगा। पता नहीं कौन से जमाने का माइक ले आया यार। कमेटी वालों ने सस्ता वाला ढूंढा होगा, सबसे अच्छा है। भैया कर दो जल्दी यार। सस्ता वाला नहीं बता रहे, सबसे महंगा वाला है। हो गया? अरे जी क्या देते हो, फिर वो डिस्टर्ब कर देता है। देखिए, हो गया? ठीक है। सुनिए, इस मिसाल पर आप गौर कीजिए। चलिए एक और मिसाल पर गौर कर लीजिए। आपने पतंग को देखा होगा, उड़ती है। पतंग उड़ाने वाला जैसी पतंग को झटका देता है, पतंग और ऊपर उड़ती है। थोड़ी देर में आप देखिए वो ढील देता जाता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन जब दूसरी पतंग वाला आपकी पतंग की डोर को काट देता है, और जैसे ही पतंग अपनी डोर से कटती है, तो ये बताइए वो ऊपर जाती है या नीचे आती है? अभी तक तो ऊपर जा रही थी, अभी तक वो पतंग ऊपर जा रही थी, उसकी डोर हमारे हाथ में थी, उड़ा रहे थे, ऊपर जा रही थी। और अचानक दूसरी पतंग उड़ाने वाले ने मेरी पतंग की डोर को जब काट दिया, तो हवा से वो ऊपर क्यों नहीं गई? फिर वो हिचकोले खाते हुए, कोला मंडी खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो नीचे क्यों आई? और नीचे आई तो लड़के उस पर झपट पड़े, या तो फाड़ दिया या किसी एक के हिस्से में आ गई और वो लूट के ले गया। कभी आपने इस मिसाल पर गौर किया है कि पतंग जब अपनी डोर से कटती है तो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? आम का अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, पतंग का अपनी डोर से कटकर जमीन पर आना, ये चीख चीख कर ये बता रहा है कि जब तक ये चीजें अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, तरक्की कर रही थी, ऊपर जा रही थी, और जब इन चीजों ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता काट लिया, तो तरक्की नहीं कर सकती है, जमीन पर आएंगी, गिरना उनका मुकद्दर बन जाएगा।
करेगा। जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो तरक्की नहीं करती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, पस्ती की तरफ आती है, गिरावट की तरफ आती है और उस पर लड़के टूट कर उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप जब तक ईमान से जुड़े रहेंगे, तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, रुसवा किए जाओगे, जलील किए जाओगे, मोब लिंचिंग करके तुम्हारी हत्याएं की जाएंगी, क्योंकि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, तुमने जड़ से अपना रिश्ता काट लिया है। तुम्हारी बुनियाद थी ईमान, तुमने ईमान से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया है, आपने काट लिया है, इसलिए तरक्की नहीं कर सकते हो। अब दुनिया में तुम्हें गिरना है, रुसवा होना है, जलील होना है, और इस जिल्लत की छोटी सी मिसाल इस जलसे में देखने को मिल रही है। कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है और छिछोरे लड़के औबाश शोर कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है। जितना अपने ईमान को मजबूत रखोगे तरक्की करोगे, ईमान से रिश्ता तोड़ोगे जमीन पर आओगे, क्योंकि ईमान बुनियाद है, बुनियाद, और बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत कमजोर होगी। आइए एक चीज की तरफ आपको लाता हूं, बताइए मुझे ये क्या था। अभी आपके गांव में देखो राजीव गांधी के बाप को, देखो हुक्म, आइए एक मिसाल पर और उसके बाद में वाकयात। एक पुलिस वाला भी आपके गांव में आ जाए, ना उसके हाथ में बंदूक हो, ना गोली हो, ना पिस्टल हो, कुछ ना हो, और आपके गांव में कोई मुखबिरी कर दे कि यहां जुआ हो रहा था या शराब का ट्रक आया, और अकेला पुलिस वाला वहां आ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा गांव उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो डांट रहा है पूरे गांव के सामने, चिल्ला रहा है पूरे गांव के सामने, चीख रहा है पूरे गांव, ऐसा करोगे तो समझ लो क्या होगा, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अकेला चिल्ला रहा है, उसके हाथ में डंडा भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, और पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसकी डांट सुन रहा है, भीगी बिल्ली बना हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। इस पुलिस वाले को पूरे गांव के सामने कौन सी चीज है जो इसको पूरे गांव का मुकाबला करने के लिए उभार रही है? अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांट रहा है, फटकार रहा है, क्यों? पूरा गांव उसके सामने डरा और सहमा हुआ है, क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला जरूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट है, उसके साथ सरकार है, वो ऑन ड्यूटी यहां आया है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ सरकारी ताकत है, यानी वो अकेला अपने आप के अंदर एक पूरी सरकार है, इसलिए वो अकेले आपको डांट रहा है, फटकार रहा है। जब वो अकेला है लेकिन सरकार की ताकत का यकीन है उसको कि हमारे साथ गवर्नमेंट है, तो फिर याद रखिए वो किसी से नहीं डरता है। यही चीज एक मुसलमान के अंदर पैदा हो जाए तो ईमान है उसके अंदर, और ये ईमानी ताकत जब उसके अंदर आ जाए कि मेरे पास ईमान है, तो अल्लाह की कसम वो किसी से नहीं डर सकता है, किसी के सामने नबुर्द आजमा नहीं हो सकता है, किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकता है, वो सारी कायनात से और सारी दुनिया से लड़ना गवारा कर लेगा, लेकिन अपने हथियार डालना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। एक पुलिस वाला जानता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, इसलिए आप सबको डांट देता है। एक मुसलमान अगर उसके पास ईमान की ताकत आ जाए तो वो सबसे लड़ जाता है, किसी का खौफ वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, अपने अंदर नहीं पालता है। आइए मैं आपको बताऊं ये क्या चीज थी। हजरत उमर फारूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं, नबी अकरम की गर्दन उड़ाने के लिए निकलते हैं, तलवार नंगी बाहर निकाले हुए हैं। एक मुसलमान सहाबी उनको रास्ते में मिल जाते हैं, इनसे पूछते हैं, अरे भाई उमर, तलवार बाहर निकाले हुए हो, कहां जा रहे हो? आज तो चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे नबी को कत्ल कर दे जा रहा हूं।
मोहम्मद की गर्दन कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा हूं। कहा अच्छा, कहा 39 आदमी मुसलमान हो चुके हैं, अब मैं 40वां शख्स मुसलमान नहीं होने दूंगा, बहुत हो गया, पानी हद से ज्यादा चढ़ गया, अब मोहम्मद को ही कत्ल कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस आदमी ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना, ये सहाबी थे, कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो, जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा क्या कह रहे हो, मेरी बहन और मेरे बहनोई ने, हो ही नहीं सकता। उमर का डर उन लोगों को कभी मुसलमान होने नहीं देगा, जाओ पहले पता लगाओ। हजरत उमर ने अपना रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मोड़कर इनकी तरफ कर लिया। दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा बहनोई ने खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर ने कहा ये क्या पढ़ रही हो, उन्होंने कुरान छिपा लिया। सही बताओ क्या पढ़ रही थी। बहनोई आ गए, कहा ऐसा है उमर, हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आए हैं। इतना सुनना था कि डंडे लाठी उठाई और अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उमर फारूक की बहन ने अपने पति को, अपने हस्बैंड को पीटते हुए देखा तो वो बचाने आई तो उनको भी पीटना शुरू कर दिया, लहूलुहान कर दिया। गौर करो वो उमर जिससे पूरा मक्का कांपता था, मदीना कांपता था, जिससे कैसरो किसरा की हुकूमत लर्जा बरंदाम थी, ये उमर जब अपने बहन और बहनोई को पीटते पीटते थक गया और बहन के जिस्म से खून बहने लगा तो बहन खड़ी होकर ललकारती है, आए उमर। हजरत उमर ने कहा आज मेरा नाम ले रही है तू, नाम ले रही है मेरा, हाँ अब तू भाई कहलाने के लायक नहीं रहा, अब मैंने तेरा नाम लिया है, क्यों ना लूं तेरा नाम। कहा बहन आज तक तूने मुझे भाई के नाम से पुकारा, भाई, और आज उमर कह रही है, इतनी जुर्रत। बहन कहती है उमर सुन, मैं इस्लाम ले आई, ईमान ले आई, मेरे साथ मेरे शौहर भी इस्लाम ले आए, ईमान ले आए। अब मेरी आखिरी बात सुन ले, कितना भी पीट ले, कितना भी मार ले, मेरी गर्दन काट दे और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। सीरत उमर की किताब में लिखा है कि उमर की बहन ने एक जुमला और कहा फातिमा ने, आए उमर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मेरे इन टुकड़ों को कुत्तों के सामने डाल दे और मेरे गोश्त को, मेरे जिस्म के टुकड़ों को कुत्तों को खिलवा दे। ये सब करवाना मुझे मंजूर है, लेकिन ईमान से भट जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं ईमान ला चुकी हूं, अब इसको मैं नहीं छोड़ सकती। उमर के सामने तलवार और डंडों के सामने वो खड़ी हो गई और बहनोई भी खड़े हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, वो उमर जिससे जमाना कांपता था लेकिन उसकी बहन उमर का मुकाबला कर रही है, बहन में वो कौन सी ताकत थी और ये ताकत किस चीज की थी जिसने उमर के सामने उसकी बहन को लाकर खड़ा कर दिया है। ये क्या ताकत थी। जब उमर की बहन के अंदर ईमान जाग गया, उसने समझ लिया, और जब ईमान की ताकत उसके अंदर आ गई तो वह न उमर के डंडों से डर रही है, न उमर की तलवार से डर रही है, न उमर के गुस्से से डर रही है। जैसे एक पुलिस वाला जब जान लेता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है तो वो किसी से नहीं डरता है, उसी तरीके से इस बहन ने जान लिया कि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर उसके दिल से खौफ निकल गया, उसके दिल से डर निकल गया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिस
اس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی. اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو. اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی. دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی. آپ کسی سے نہیں ڈرو گے. شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو, اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ. نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے, نیچے آؤ گے. حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو, حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں. وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں, جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ. کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا, بلال کوئلے سے زیادہ کالے. لیکن یہی وہ بلال ہے جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے, ایمان لائے, تو کافروں نے ان کو پکڑا, زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا. ریت گرم ہے, بالو گرم ہے, اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی. اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے. اس کے باوجود پوچھا گیا, اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف, دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے, حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے. آہد آہد آہد. اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی, بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی, پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال, زمین پہ لٹا دیا گیا ہے, گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے, بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے, لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے, بلال کانپ نہیں رہا ہے. بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں آہد آہد آہد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے, اسی ایمان نے. ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے, پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے, ڈرنے کا نام نہیں لیں گے. صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. حضرت بلال کو جب آہد آہد سنا تو ان کو اٹھایا, پھر دوسری جگہ لے گئے. آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے, حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا. سننا بہت آسان ہے, سن لو گے, آگ کے انگاروں پر لٹا دیا. سننا بہت آسان ہے, لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر, آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا. حضرت بلال دیکھ رہے ہیں, جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا. آگ پر لٹا دیا گیا, ان انگاروں سے چربی پگھل گئی, پیٹ پگھل گئی. چربی کی, پیٹ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے, بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو؟ کیا ایمان چھوڑا, ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں, اللہ احد اللہ احد اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا, اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو, مجھے معاف کر دو. نہیں نہیں, وہ آج ان کافروں کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. ایسی منزلیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بلال سے کہا تھا اے بلال, اے بلال, مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی, مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی. جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے
आगे आगे जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा जिब्रील ये जूतों की आवाज किसकी है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिलाल, जिब्रील ने बताया कि ये बिलाल है जो दुनिया में है, लेकिन उनकी जूतों की आवाज तुम जन्नत में सुन रहे हो। यानी बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई हैं दीन के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जाना और बिलाल से कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी, तुम्हारे जूतों की आवाज मैं सुन के आया हूं। ये ईमान का रिजल्ट है, ये ईमान का नतीजा है। हम अपने अंदर पहले ईमान पैदा कर लें और फिर देखें। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत कहां से की है? आम के फल से की है। अगर गिरता है, टूटता है तो आसमान पर नहीं जाता, जमीन पर। क्यों? जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लेती है उसका मुकद्दर तरक्की नहीं होती है, पस्ती होती है। जो पतंग अपनी डोर से कटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। आपकी और हमारी बुनियाद है ईमान। अगर इससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे, हम नीचे जाएंगे। खालिद इब्न वलीद ने एक जंग के अंदर 9 तलवारें तोड़ डाली, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। हर तरफ खालिद इब्न वलीद के चर्चे होने लगे। वाह क्या लड़ा खालिद, क्या लड़ा खालिद, वाह खालिद इब्न वलीद। हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि लोगों ने हजरत खालिद इब्न वलीद की तारीफें करना शुरू कर दी, तो हजरत खालिद इब्न वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया, कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। हजरत खालिद इब्न वलीद ने 9 तलवारें तोड़ी, जीत, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया, चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं, तो हजरत उमर को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए या नीचे? अकल तो यही कहती है कि आगे प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन हजरत उमर ने उल्टा किया। क्या किया? खालिद इब्न वलीद को माजूल कर दिया, उनको कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया और आम सिपाही बनाकर तलवार दे दी। जाओ, अब तुम कमांडर इन चीफ नहीं, किसी भी जंग में जाओगे तो एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ोगे। लोगों ने कहा खालिद, उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की है, उमर ने तुम्हें जलील किया है, तुमने तो बहादुरी दिखाई है जंग के अंदर, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन खालिद तुम्हें हटा दिया गया है, छोड़ दो उमर को, हट जाओ, इस्तीफा दे दो, तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, इधर आ जाओ। खालिद इब्न वलीद ने जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। खालिद इब्न वलीद ने क्या जवाब दिया? नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। हम जो जंग लड़ रहे थे वो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे थे, उमर के रास्ते में नहीं लड़ रहे थे। हमने जंग अल्लाह के लिए लड़ी है, उमर के लिए नहीं है। हम मामूली सिपाही बनकर भी हम जिहाद करेंगे, लेकिन उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए करेंगे। मेरे भाइयों, ये इस्लाम था, ये ईमान था उस जमाने के सहाबा के अंदर। तुम तो अपने भोले भाले जो दूर से आए हैं, ये मुसलमान भाई जो सुनने के लिए आए हैं, तुम उनको तकलीफ देने के लिए उनके सामने खड़े हो गए हो, तुम उनके लिए मुसीबत बने हो, तुम अपने भाइयों को रास्ता नहीं दे सकते हो, उनके लिए बैठ नहीं सकते हो, तुम इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्या दोगे? लानत है, आज कहना पड़ रहा है तुमसे, बड़ी बदकबाश कौम हो चुकी हो ये मुस्लिम कौम। किसी साइंटिस्ट ने कहा था, जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे दुनिया की सबसे बेहतर मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने दौरा किया तो दुनिया की सबसे बुरी कौम हमें मुसलमान नजर आई है। सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन सबसे बदतर कौम हमें मुसलमान नजर आई है। ये कौम है हमारी, लाख समझाने के बावजूद नहीं मानती है और दूसरों को तकलीफ देती है। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए और चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपका खतीब यूपी से जिसको मोहब्बतों के साथ तुम बुलाते हो, लेकिन उसकी इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। जब मेरी नहीं मान सकते हो तो इस्लाम की बात क्या मानोगे और कुरान की बात क्या मानोगे? मेरे भाइयों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना बाकी रह गया है कि मैं अपना दामन उठाकर भीख मांग लेता हूं आपसे कि अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। अब इससे ज्यादा जलील करके मत दिखाइए मुझे, मैंने भीख मांग ली है आपसे, मैंने दामन उठा लिया आपके सामने, अब इससे ज्यादा जलील मत करिएगा मुझे।
बैठ जाइए बस, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आइए, बड़ी अच्छी बातें होने लगी हैं, तो अब मैंने आपको बता दिया है मेरे भाइयों, खालिद इब्न वलीद को लोगों ने बहुत बहकाया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां तक कि उनसे कहा गया कि हमारे मजहब में आ जाओ, हम तुम्हें आधे मुल्क की हुकूमत दे देंगे और अपनी शहजादी का निकाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। खालिद इब्न वलीद को बादशाह ने ऑफर दे दिया, हम आधी मिल्कियत, आधी बादशाहत दे देंगे और अपनी शहजादी का निकाह तुम्हारे साथ, शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की, लेकिन खालिद इब्न वलीद का जवाब सुनिए मेरे प्यारे साथियों। वो जवाब यही था कि नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। मैंने जो जंग लड़ी है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ी है, उमर के रास्ते में मैंने नहीं लड़ी है। उमर ने मुझे गवर्नरी या सिर्फ कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटाया है, सिपाही तो हूं मैं, एक मामूली इंसान होकर भी मैं लड़ूंगा और जो काम मैंने कमांडर इन चीफ की शक्ल में किया उससे बढ़कर काम एक मामूली सिपाही की हैसियत से मैं करूंगा, क्योंकि मैं उमर के लिए नहीं लड़ रहा हूं, उमर के रब के लिए लड़ रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा होना चाहिए हमारे और आपके अंदर ईमान का। कोई ओहदे की लड़ाई नहीं थी, हम तो मर जाते हैं, मदरसे का अच्छा सेक्रेटरी उसको बना दिया, हमें नहीं, मस्जिद का मुतवल्ली उसको बना दिया, हमें नहीं, उसी पे जंगें होती लड़ते, यहां तक कि कोर्ट में भी मुकदमे पहुंच जाते हैं, साहब मैं हूं, रजिस्टर्ड हूं, मैं चढ़ा हुआ हूं, मुझे हटा दिया गया। मस्जिदों और मदरसों के मामलात आज अदालतों में, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए अपने आप पर, क्या ईमान से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। आइए ईमान की ताकत पर आपको एक बहुत जबरदस्त मिसाल देता हूं। दुनिया की तारीख में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, 4 लोगों ने की है, उनमें एक फिरौन का नाम भी आता है। बहुत जबरदस्त जालिम गुजरा है, और फिरौन के मुकाबले में अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया था? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। ये वाकया आज बिल्कुल मेरी जबान से एक नया वाकया होगा आपके लिए, जरा सुनिए। ईमान देखिए किसको कहते हैं, ये चीज मुझे आपके सामने रखना है। जब थक गया फिरौन भी, तो कहा कि मूसा आओ मुकाबला कर लेते हैं, या तो आप तुम्हारे आदमी इस दुनिया में रहेंगे या मेरे आदमी रहेंगे, आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने चंद लोगों को लेकर चले जाते हैं। मूसा पर ईमान लाने वाले थे ही कितने, मामूली लोग, चंद लोग। फिरौन की पूरी फौज आ गई। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुला लिया, इधर आओ, आओ आपको एक मंजर दिखाते हैं। यहां स्पीड मेरी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी क्योंकि मुझे समझाना है। फिरौन ने अपने साथियों को बुला लिया, इधर आओ। ऐसे करतब दिखाना, ऐसे तिलस्म दिखाना कि आज मूसा और मूसा के कौम के लोग, ये मुसलमान जितने आए हैं सब हार जाएं। देखो हमारा नाम मिट्टी में न मिलने पाए, आज तुम्हें मूसा को शिकस्त देना है, मूसा को हराना है। फिरौन को अपने जादूगरों पर बहुत भरोसा था। जादूगरों ने कहा बिल्कुल आप तैयार रहिए, मूसा और उसके कौम को हराना मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी हरा दूंगा। जब दोनों आमने सामने आ गए, इधर फिरौन का लश्कर खड़ा है, फिरौन भी, इधर मूसा और मूसा का लश्कर खड़ा है। फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, ओहो ईमान देखिए, फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। आए फिरौन, आए हमारे बादशाह, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा पर गालिब आ गए, मूसा को हरा दिया, तो हमें क्या इनाम मिलेगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अगर हम गालिब आ गए, कुरान कह रहा, कुरान, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? हमें आप क्या नवाजेंगे, हमें क्या देंगे? उधर से फिरौन की तरफ से जवाब आता है, नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन,
तुम हमारे खास लोगों में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट में तुम्हें जगह मिल जाएगी, तुम हमारे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे आसपास बैठोगे, मेरे साथ चलोगे, खाओगे पियोगे। अभी किसी को पता चल जाए कि हम ये काम करेंगे तो मोदी जी का करीबी बन जाएंगे, तो करेगा कि नहीं करेगा? फौरन कर जाएगा। क्यों? अरे भाई मोदी का मुकर्रब बन जाए तो समझ लो कि इंडिया मेरे हाथ में। अब सोचो कि फिरौन के जादूगरों को जब फिरौन ने ये कहा कि हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपना करीबी बना लेंगे, अपने दरबार में तुम्हें शामिल कर लेंगे, तो फिरौन के जादूगरों का हौसला कितना बुलंद हो गया होगा। वो फिरौन जिसकी हुकूमत बैक वक्त आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर रही हो, उसका करीबी हो जाना कितने बड़े कमाल की बात थी। बस शुरू हो गया मुकाबला फिरौन के जादूगरों ने। ए बेटा, कमर में दर्द हो रहा है, बैठ जाओ। अभी तो कमर से काम ही नहीं लिया, दर्द हो गया। यही होता डिस्टर्ब। कोई भी मेरे सामने उठ जाए, बैठ जाए, मैं भूल जाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। तो सुनो, शुरू हो गया मुकाबला। अब मुकाबला जब शुरू हुआ तो फिरौन के जादूगरों ने क्या किया? अपनी रस्सियां निकाली और फेंक दी। वो रस्सियां चलने लगी, सांप की तरह रेंगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डर भी गए हैं, देखने वालों को सांप नजर आने लगा। फेंकी रस्सियां, वो सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डर भी गए। अल्लाह ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं। रस्सियां सांप बन गई। सांप तो थी नहीं, वो थी रस्सियां, लेकिन देखने वालों को सांप दिख रही थी। अल्लाह ने कहा आए मूसा, जो तुम्हारे हाथ में डंडा है वो जमीन पर मार दो। अब देखिए क्या हुआ, मुकाबला देखिए कैसा हो रहा है। तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उसको जमीन पर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना डंडा जमीन पे मारा, फैज़ा हिया तल्क़फ़ु, ऐसा लगा वो एक अज़दहा बन गया और अज़दहा की शक्ल में आया, और आते ही उसने फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को जो सांप दिख रहे थे सबको खा गया, सबको हजम कर गया। जो खोला मुंह सब उसके मुंह में चले गए जितने सांप दिख रहे थे। फिरौन के जादूगर हक्का बक्का रह गए हैं। वो समझ गए, यहीं से वो समझ गए कि हमने जो दिखाया वो तिलस्म था, हमने जो दिखाया वो जादू था, हमने जो दिखाया वो ढोंग था, हमने जो दिखाया वो मक्कारी थी, हमने जो दिखाया वो एक चाल थी। लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो मक्कारी नहीं है, वो चाल नहीं है, वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की मदद है। मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। वो समझ गए। वो ये भी समझ गए कि आप बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं है। बैक वक्त जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी रस्सियों को जो सांप नजर आ रही थी, मूसा का अज़दहा खा गया, मूसा ने जो डंडा मारा वो अज़दहा बन गया और खा गया। वो समझ गए कि मेरी हालत खराब है। मूसा ने जो दिखाया वो मूसा का कमाल नहीं, मूसा के रब का कमाल है। अभी तो वो फिरौन से मांग रहे थे कि क्या हमें क्या इनाम दोगे, हमें क्या रुपया पैसा दौलत जमीन और जायदाद क्या दोगे। अभी तो वो ये मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि फिरौन की जादूगरों की रस्सियों को जब मूसा के अज़दहे ने खा लिया, तो वहीं से चीख पड़े आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। फिरौन के सामने चीख पड़े, हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, रब मूसा व हारून, मूसा के रब पर, हारून के रब पर। एक जुमला याद रखना, क्या लाए? ईमान। अभी तक काफिर थे, अब ईमान लाए। अब हम आपको दिखाते हैं ईमान जब ले आए, बुनियाद से जब जुड़ गए, तो ईमान लाने के बाद इन जादूगरों की ताकत का हाल देखिए क्या होता है।
ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے, ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو, لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے, اب جواب کیا دیا فرعون کو؟ اس جواب کو دیکھو, اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن نؤثرک علی ما, آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے, اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے, ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا, اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے, ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو, کان کھول کر اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو, کیا کہا؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. آئے جادو کرو, اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا, آئے جادو کرو اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے, اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں, اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں, ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنكم أجمعين, اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے, ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا, فرعون سامنے تھا, فرعون کا لشکر سامنے تھا, لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فقضی ما انت قاضی, فقضی ما انت قاضن. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر, میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ, میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ, مجھے سولی پہ چڑھانا چلا دے, مجھے پھانسی دینا پھانسی دے دے. انت قاضن, تو قاضی ہے, تو جج ہے, تو جو چاہے کر, تجھے اختیار ہے کر لے, لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے, آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا. آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی, اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے. جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے, فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, لیکن موسیٰ پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے, نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے. فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا, ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا, ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے, لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں. پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں. ایمان یہ ہوتا ہے, اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں, ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں, ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں, اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر, کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں. وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی,
وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے، وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تو تمام لشکر والوں کا، جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤ پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا اب یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے، دو ہی راستے ہیں۔ آئے فوجیوں تمہارے پاس، آئے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں۔ اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ۔ بھاگنا، کوئی بھاگے نہیں، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے، کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے، دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لنگڑا لولا آئے، 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا، 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام